Good morning, students. So in the last class, we have completed that exercise of substitution, right? And to start the new exercise, I have already given you the list of formulas to be used in the next exercise, right? So let me quickly revise these formulas and then we will start with solving the questions based on this. See, basically there are three types of problems. Just for time being, just don't think that you know this formula, and just think about this expression. Okay, can you find out integration of this with whatever knowledge you had till now? Can you solve? See, it looks like 1 upon x, right? 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? सॉरी, इंटीग्रेशन होता है log of mod of x, करेक्ट? बट वी नो दैट 1 अपॉन x का एक्सटेंशन क्या है कि x के जगह अगर कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, राइट? 1 upon 2x plus 3, 1 upon x plus 5, 1 upon 5 minus 2x. If x is replaced by any linear equation in one variable, then also we can apply that formula, isn't it? But here, what problem do you face? That, sir, instead of linear equation, it's a quadratic equation because it is power x equal to 2. So here I cannot apply, yes, I cannot apply 1 upon x formula. Okay. Secondly, because of that constant a square, also I cannot take x square to the numerator and solve. अगर ये simply 1 upon x raised to 2 होता, तो I would have written x raised to minus 2, and then I would have applied x raised to n formula और solve हो गया रहता. बट वो भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके साथ कोई कांस्टेंट अटैच्ड है. तो why I'm telling you all these things, because in exam when it will come, it won't tell you that use this formula. So you will definitely think about the steps or the methods which you have learned in the beginning, right? फिर वो नहीं होगा, फिर ये वाला मेथड, फिर ये वाला मेथड, ऐसे करते करते आपको आएगा कि कौन सा मेथड हमको यूज करना है, राइट? ओके, नाउ मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसका प्रूफ भी बोला था कि आप घर पे इसके प्रूफ्स को देख लेना, राइट? हैव यू ऑल डन द प्रूफ? देखा आप लोगों ने? The proof is can be done by simple substitution method. Okay, and below this formula, I had also asked you to draw that table of substitution. Yes? Have you drawn that also? Everybody?
Okay. Let me take out the textbook. Just a minute. Okay. So I got this page now. Yes. See, whenever you have expression integrals where you have all such terms, this is what we can substitute. And this is very easy also. See, whenever you have something in root and you are planning for substitution, the only intention, हाँ, जो मेन रीजन होता है सब्स्टिट्यूशन का, कि हमको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना है जिससे ये रूट डिसॉल्व हो जाए, राइट? ये रूट निकल जाना चाहिए. तो देखो, अगर मैंने यहाँ पर x के जगह जो भी पुट करूंगा उसमें a तो जरूर रखूंगा. क्यों? सो दैट अगर a होगा तो वो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और a स्क्वायर का रूट a हो जाएगा. So if you just think if I put something a into something and if I take a square common, I'll be left with 1 minus something का square. तो I need to think कि 1 minus something का square is square. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? तो you know two things. 1 minus sin square is cos square and 1 minus cos square is sin square. So either I put a sin theta or a cos theta. You can check also. a sin theta put किया तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा, a स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर हो जाएगा. यानी इसके अंदर आएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर वो a कॉस हो जाएगा, राइट? ऐसे यहाँ पर a पुट किया तो a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर. तो हमको तो मालूम है सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर. तो इसका मतलब x के जगह या तो आप a टैन पुट करो या a कॉट पुट करो. a कॉट भी हो सकता है, राइट? तो a स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर. फिर वैसा ही उसी का अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो समथिंग का स्क्वायर माइनस 1 कौन सा फॉर्मूला है? तो हमको मालूम है सेक स्क्वायर माइनस 1 इज टैन स्क्वायर, राइट? या कोसेक स्क्वायर माइनस 1 इज कॉट स्क्वायर. तो इधर ए कोसेक एक्स पुट करेंगे या तो ए कोसेक एक्स. एंड लास्टली a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स. सो इफ आई अब यहाँ पर a कॉमन लेंगे तो नीचे का भी a कॉमन आएगा, a कैंसिल. तो इसके लिए x की जगह क्या पुट किया? cos 2 थीटा. a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा पुट करने के बाद a कॉमन लेके कैंसिल हो गया. ऊपर बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा. दोनों का स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है. 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 कैंसिल, फिर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर और रूट भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो यही सब सब्स्टिट्यूशंस के साथ हम लोगों ने ये सारा प्रूफ्स देखा होगा, ठीक है? आई थिंक इट्स क्लियर नाउ एवरीबॉडी. ओके, नाउ लेट्स go back to textbook, sorry, notebook. जल्दी से सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो. लास्ट टाइम मैंने लॉजिक भी दिया था आप लोगों को कैसे याद रखना है इन सारे फॉर्मूलेस को. सो जल्दी 2 minutes extra to revise these formulas.
Okay, I hope everyone would have revised these formulas. So let us start problem now. Exercise 3.2b, first question. Okay, all of you just pay attention here, how I'm solving. Look at here. First question. I is equal to integration of 1 upon 4x square minus 3 dx. Now, by looking at this question, you can easily make out that this is of the type which we have learned just now, the formula which we have learned just now. But there need to be, like we'll have to do some adjustments here to go ahead this formula, like to apply that formula, because ये directly वो formula जैसा दिख नहीं रहा है, हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. अभी सॉल्व में क्या करना पड़ेगा? तो देखो जितने भी फॉर्मूलाज हम लोग ने लर्न किया स्टूडेंट्स, उन सब में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा 1 है, राइट? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. So whenever you have such type of problem, you always have to do that thing first. Make coefficient of x square as 1. Now to make a coefficient of x square as 1, I am taking 1 by 4 common. ठीक है, 4 common. But since it's a denominator, so it's 1 by 4. तो यहाँ तो easy है कि 4x square में से 4 common लिया तो वो x square हो गया. But 3 में तो 4 था ही नहीं. फिर भी अगर हम जबरदस्ती कॉमन लेते हैं कभी भी, तो हमको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है उस नंबर से. क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 4 को अगर वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलेगा. देख लो, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, तो 3 बचेगा. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस स्टेप? तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट मिल गया. बट फिर अब ये कांस्टेंट जो होता है वो कांस्टेंट भी ए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए. सो आई विल हैव टू राइट कि वो किसका स्क्वायर है. सो आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर है. अब 3/4 में 4 2 का स्क्वायर है, बट 3 किसका स्क्वायर है? तो हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर है ना वो. तो मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 the whole square. Yes, everybody understood the first 2 steps of this problem? Okay. And now this looks like which formula? 1 upon x square minus a square. हाँ, तो 1/4 पहले से है कांस्टेंट, वो एज इट इज होगा. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a. सो 2 इंटू ए मेरा क्या है अभी? √3/2 इंटू log of mod of x माइनस a, तो x माइनस √3/2 अपॉन x प्लस a, तो x प्लस √3/2 प्लस c. देख लो सब लोग फॉर्मूला, ये 1/4 पहले से कांस्टेंट था, बाहर हुआ 1 अपॉन 2a log of mod of x minus a upon x plus a. Further solving, cancelling, if anything getting cancelled.
सो यहाँ देख सकते हैं 2 और 2 कैंसिल हो गए. सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1/4√3. ठीक है, log of mod of, आई कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 2x माइनस √3 अपॉन 2 बचेगा, नीचे भी अपॉन 2 बचेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा. 2x प्लस √3 अपॉन 2 कैंसिल. तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. yes, everyone understood? सबको समझ में आ गया कैसे हुआ ये प्रॉब्लम? सो देखो, फॉर्मूला याद है तो इट्स वेरी सिंपल, राइट? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन. डन? ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन. अभी दीज आर इजी क्वेश्चंस, तो मैं थोड़ा स्पीडी करूंगा अभी. हाँ, थोड़ा मैं फास्ट सॉल्व करूंगा. जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर? यस, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर? सर, मेक x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, so I will have to take 1/9 common. So I will be left here with 25/9 minus x square dx. Then I can write this as 25/9 can be written as 5/3 the whole square minus x the whole square. Now this looks like a square minus x square formula, right? 1/a square minus x square. So I can apply the formula. 1/9 being constant, let it be outside. वो होता है 1/2a, तो 2 into a यहाँ पर है 5/3 into log of mod of a plus x 5/3 plus x upon a minus x 5/3 minus x plus c. Check if anything getting cancelled here. So I can see 3 1s are 3 3s are. So here 3 2s are 6, 5s are 30. So 1/30 outside. Log of mod of, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 plus 3x upon 3, 5 minus 3x upon 3 कैंसिल. तो ये आपका फाइनल आंसर. समझ में आ गया सबको? ओके, सो इट्स इजी. ओके, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. ठीक है, तो अभी आई थिंक नेक्स्ट मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हो मैनेज. ठीक है, तो थर्ड वन इज होमवर्क. Now fourth one, I is equal to integration of 1/√3x square minus 8. So इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है बच्चों, है वही, बस रूट लग गया तो रूट का फॉर्मूला लगेगा, बाकी स्टेप्स वही रहने वाले. हाँ, एक थोड़ा सा चेंजेस नहीं है, वो हमको बस ध्यान देना पड़ेगा कि उसको कैसे करना है. 3x स्क्वायर माइनस 8 है ये. अभी नॉर्मली क्या होगा बच्चों, आप बोलोगे सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है, सो यू नॉर्मली टेक 3 कॉमन, राइट? बट हियर डेफिनेटली यू विल टेक 3 कॉमन. अच्छा, 3x स्क्वायर प्लस 8 है क्या बच्चों की माइनस 8 है क्वेश्चन में? प्लस 8, ठीक है. चलो, तो 3 कॉमन लेना है, बट सी पहले क्वेश्चन में हम 3 डायरेक्ट 1/3 लिख देते थे.
अभी क्या होगा, वो रूट के अंदर है ना, सो एक्चुअली आई हैव टेकन 3 कॉमन फ्रॉम इनसाइड, बट जब बाहर लिखा तो उसको हमको √3 लिखना पड़ेगा। सबको समझ में आया? अंदर होगा x² + 8/3, अंदर 3 कॉमन लिया। हाँ, उस 3 को बाहर लिखने के लिए हमको रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सभी नंबर के सबके ऊपर, पूरे ब्रैकेट के ऊपर रूट है। ये 1/√3 एज इट इज। अब तो आगे का स्टेप सेम ही है। √(x² + 8) एंड 3 है तो 8 को √8 लिखेंगे और 3 को √3 लिखेंगे, उसका होल स्क्वायर। So now don't you think it looks like a formula 1/(x² + a², right? So what is the integration of 1/√(x² + a²? तो फॉर्मूला बाय हार्ट होना चाहिए आपको, log of mod of x plus क्वेश्चन याद है, √(x² + a², so √(x² + a² प्लस c। ठीक है, अब थोड़ा अगर सॉल्व हो रहा है कुछ, so you can just solve them. So it is 1/√3 as it is outside, log of mod of x plus, अभी ये 8/3 है, राइट? √3 का स्क्वायर मतलब 8/3 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x² + 8/3 प्लस c। समझ रहे हैं आप लोग? एंड फिर वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये रूट है, ये भी रूट है, दोनों को अलग अलग रूट समझो तो √3 का मल्टीप्लाई होगा, तो √3x/√3x² + 8 whole upon √3 plus c. So this can be your final answer. Yes, please go through. Have you all understood all the steps? I need replies whether you have understood or not, students. Okay. Chalo, moving ahead to the next problem, fifth one. I is equal to integration of 1/√11 minus 4x². All the steps are same. Here also I will take 4 common, but since it is in root, it will be actually √4 out, right? And then I will be left with 1/11/4 minus x² dx. So now I have to write 11/4 as root of something. अच्छा, √4 होता है 2, तो अभी मैं लिख सकता हूँ उसको ऐसा 1/, इसको लिखूंगा मैं √11/2 the whole square minus x the square. तो ये हो गया a² - x² का रूट। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, उसका होता है, वो एक स्पेशल फॉर्मूला था ना, एकदम डिफरेंट फॉर्मूला था इसका। तो 1/2 एज इट इज इनटू, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। यस, 1/√a² - x² का फॉर्मूला है साइन इनवर्स
x by a, x तो x है, a will be root 11 upon 2. That upon 2 can go to the numerator, so your final answer will be 1 by 2 sine inverse of 2x upon root 11 plus c. ये आपका फाइनल आंसर। सबको समझा बच्चों? ओके, सो लाइक दैट सिक्स्थ प्रॉब्लम है वो आपका होमवर्क रहेगा। सिक्स्थ वन इज होमवर्क। ओके, now let us start with seventh problem. It's I is equal to integration of root of 9 plus x upon 9 minus x dx. Now if you look at this question, then you realize कि सर ये तो हमने जो अभी तक किया उस टाइप का तो नहीं दिख रहा है। यस, क्योंकि उसमें तो स्क्वायर होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए, यहाँ तो कुछ अलग ही दिख रहा है। So there are many methods to solve such type of problem. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सब्स्टिट्यूशन देखा था ना, वो टेबल के अंदर लास्ट वाला जो था a प्लस एक्स a माइनस एक्स वाला, तो वैसा भी कुछ हम यूज कर सकते हैं। और इसको हम रैशनलाइजेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम उसको रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करते थे, राइट? सो एनी मेथड इफ यू डू, इट इज ओके इफ द स्टेप्स आर राइट। ओके, so suppose if I first do it by substitution method, method 1. So can anyone tell me what should I substitute then? What should I substitute? So I can put x ke jagah. I need a also because to take common, so I will take 9 and I will say cos 2 theta, right? Then I will have to differentiate this, correct? So if I differentiate with respect to x, x डेरिवेटिव इज 1, तो इधर dx आ जाएगा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 d थीटा। Is it right? So dx can be written as minus 18 sine 2 theta d theta, correct? And now I just substitute them back. So therefore, I can be written as root of 9 plus 9 cos 2 theta upon 9 minus 9 cos 2 theta into minus 18 sine 2 theta d theta. Taking 9 common from the numerator and denominator and cancelling them out, I will be left with 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta into minus 18 sine 2 theta d theta. Applying the formula, 1 minus cos 2 theta होता है 2 sin square theta और ये होता है 2 cos square theta।
inside the root into -18 sin 2 theta d theta. अब आई थिंक 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर का साइन थीटा इंटू अपॉन कॉस थीटा बच गया। यहाँ पर साइन 2 थीटा को भी मैं थोड़ा रिड्यूस कर सकता हूँ ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा करके, ठीक है, सो दैट this cos theta and cos theta gets cancelled. So now I'll be left with number देखेंगे तो 18 2 are 36, so it's -36 which is outside the integration, and sine into sine is sine square theta d theta, correct? साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करना होता है हम सबको मालूम है, राइट? साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको हम लिखते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये 2 को बाहर लिया, सो -36 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर सिंपल बचा 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा, एंड नाउ यू इंटीग्रेट, तो बाहर तो ये -18 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ थीटा, so that is 2, coefficient of theta is 2 plus c, and you can now just replace theta ka value here. So I will go back to the substitution wala step. So from here I can easily make out that, you know, x by 9 equal to cos 2 theta, right? So from here theta can be what? तो पहले cos को भेजेंगे ना, cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स लग जाएगा, तो cos इनवर्स x बाई 9 वो होगा 2 थीटा, करेक्ट? सो थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x बाई 9। सबको समझा थीटा का वैल्यू कैसे निकाला मैंने? फाइनल आंसर में थीटा को रिप्लेस करना है अपने को। ओके, दूसरा फाइनल आंसर में साइन 2 थीटा भी है, तो साइन 2 थीटा कैसे निकाल सकते हैं? तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, हमको मालूम है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1, तो अगर cos 2 थीटा मालूम है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा इज 1, करेक्ट? लेट मी राइट डाउन हियर, ये सब मतलब साइड में आप सॉल्व करके निकाल लोगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि जो साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा वो 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा होगा, so which is 1 minus x by 9 the whole square, which is x square by 81, which is 81 minus x square upon 81. This is sine square 2 theta. So only sine 2 theta will be what? Root of 81 minus x square upon 9. ये sin 2 theta हो जाएगा। तो हम थीटा के जगह ये और sin 2 थीटा के जगह ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये क्या है? 1/2 cos इनवर्स x by 9। लेट मी राइट 1/2 cos इनवर्स x by 9 माइनस, ये 1/2 को एज इट इज रखा, साइन 2 थीटा की जगह क्या आया था? रूट ऑफ, सॉरी वापस देखते हैं एक बार क्या आया था हमने, हाँ, साइन 2 थीटा इज रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, या 81 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। यू कैन सी 1/2 कॉमन है, उसको बाहर ले लिया, ठीक है, तो वो 9 हो जाएगा, 2 9s, सो इट्स -9 cos इनवर्स x by 9 माइनस रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। सबको समझ में आया कैसे किया हमने बच्चों?
अब पीछे जो आंसर दिया रहेगा वो ये आंसर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि वो लोग ने दूसरा मेथड से इसको सॉल्व किया। पीछे शायद आपका ये -9 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और फिर कॉस इनवर्स को दे हैव कन्वर्टेड इनटू साइन इनवर्स, उस वैसा सॉल्व किया है। कॉस इनवर्स कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू साइन इनवर्स, तो उन लोग को यहाँ पर साइन इनवर्स मिल रहा है, ठीक है। सो उनका आंसर साइन इनवर्स 9 टाइम्स साइन इनवर्स x/9 है, और यहाँ पर √81 - x² है, दैट्स ऑल। So let me explain you once again this problem. We tried to do it by substitution method. So substitution में हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x के जगह 9 cos 2 थीटा, डेरिवेटिव करोगे तो 9 एज इट इज, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो cos 2 थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा, इंटू 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 d थीटा बाई dx हो गया ये। तो dx इज रिप्लेस्ड बाई -9 2 18 -18 sin 2 थीटा। From here we can get cos 2 theta, right? x/9 is cos 2 theta, फिर cos को उधर भेजा दो, cos इनवर्स x/9 is 2 theta, so theta is 1/2 cos इनवर्स x/9, ओके। एंड अगर मुझे sin 2 थीटा चाहिए तो sin 2 थीटा के लिए मैंने sin स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर किया, 1 - x/9 का स्क्वायर इज x²/81, क्रॉस मल्टीप्लाइड 81 - x²/81, सो ये ऐसा हो गया। एंड देन हमने इन सबको सब्स्टिट्यूट किया, so 9 + 9 cos theta, 9 - 9 cos theta, 9 9 cancel, 1 - cos 2 theta, 1 + cos 2 theta, dx is replaced by -18 times sin 2 theta, we are just keeping that term as it is। तो फिर 1 - cos 2 theta होगा 2 sin square theta, 2 cos square theta, 2 2 cancel, sin square by cos square, sin by cos, फिर cos कैंसिल हो गया, फिर जो बचा वो है -18 sin square theta, -18 2 36। फिर साइन स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए हमको मालूम है हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आई यूज दैट फॉर्मूला, इंटीग्रेट किया, सब्स्टिट्यूट किया, देन गॉट द आंसर, ठीक है। सो दिस इज वन मेथड, थोड़ा लेंदी मेथड है, और वो सब साइन निकालना, कॉस निकालना, थीटा निकालना, थोड़ा इसमें लेंदी हो गया, राइट। लेंदी के साथ साथ थोड़ा डिफिकल्ट मेथड भी बोल सकते हैं उसको। सो नॉर्मली बच्चे जो उनको इजी लगता है, दैट इज द सेकंड मेथड, they follow the most, so let us do that। So we have a question here, I equal to integration of root of 9 plus x upon 9 minus x। So what we do as a first step, we rationalize, and how do we rationalize, we rationalize in such a way that the root should come in the denominator, क्योंकि फॉर्मूले जो है उसमें रूट डिनोमिनेटर में, रूट ऊपर नहीं है, तो यहाँ पर हम 9 + x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट 9 + x एंड 9 + x होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 9 + x 9 + x होल स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो 9 + x बच गया। नीचे होगा a² - b², तो वो होगा a² यानी 81 - b², तो x²। सबको ये पहला स्टेप समझ में आया बच्चों, पहला और दूसरा स्टेप। Okay, now what can I do is I can separate them, मतलब what I'll do, I'll take 9 upon √81 - x², ठीक है, dx, and plus I will take x upon √81 - x²। Have you all understood बच्चों? अभी क्या होगा, देखो 9 कांस्टेंट है ना, तो वो बाहर आ जाएगा, इसको 9² लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया ना बच्चों, नहीं लगता आपको?
देखो यहाँ पर ये 9 को बाहर लिखा, ये 1 हो गया, और 81 को लिखा 9 का स्क्वायर, ये तो x का स्क्वायर है ही, तो ये हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट। अब बोलोगे सर ये सेकेंड वाला टर्म क्या होगा? तो अगर आपको याद होगा, मैं सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता हूँ, बट जब हमको कोरोलरी याद है तो हम वही करते हैं ना। एक हमने कोरोलरी पढ़ा था स्टूडेंट्स, कि अगर इंटीग्रेशन निकालना है, नीचे रूट के अंदर जो फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका आंसर होता है 2√f(x). ठीक है, तो मैं देखता हूं कि रूट के अंदर जो 81 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव इज -2x. So can I do some adjustment so that I can get -2x in the numerator, students? Tell me. तो कांस्टेंट का एडजस्टमेंट तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना, x तो है ही हमारे पास, आई कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई -2 टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, ये प्लस एज इट इज है, मैंने क्या किया, -2 से डिवाइड किया यहाँ पर, और यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई किया। समझो ये स्टेप को बच्चों। ठीक है, एंड नाउ I am applying the formula. This 9 is as it is. 1 upon root a square minus x square का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a, तो x बाई 9 हो गया, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सो प्लस माइनस माइनस 1/2, और अब ये क्या है, तो रूट एफ एक्स, और ऊपर उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2√f(x). तो 2√f(x) मतलब यही जो है f(x). सबको समझ में आया बच्चों? यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 9 कैंसिल नहीं करना जोश में, क्योंकि वो एंगल के अंदर है। हाँ, तो द फाइनल आंसर विल बी 9 साइन इनवर्स x बाई 9 माइनस रूट ऑफ 81 minus x square plus c. This is your final answer. I think all of you would like to do this question by method 2 only. It's easy, right? Okay. So let us move ahead to the next problem now. I think the next problem is of the same type, 2 plus x upon 2 minus x. So I can give you that question for homework, right? So 8th question will be homework. Then even 9th is also of the same type, 10 plus x, 10 minus x. So 9th is also homework. Just rationalize and start solving it. So this way we have completed the first question. Everyone understood all the type of questions in question number 1? Anything which you have not understood, you want me to explain, please let me know. Everything is done. Now students, if you look at question number 2, okay, question number 2, then don't you think कि क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको डायरेक्टली फॉर्मूले के टाइप में नहीं दिख रहा है? यस, फॉर्मूले में हमेशा एक्स स्क्वायर हुआ है और कांस्टेंट हुआ है, राइट? मतलब है तो वो भी क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक है, बट नॉर्मली क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होता है ना।
राइट। तो फिर यहां पर क्यों ऐसा नहीं आ रहा है? हाँ, वहां पर तो एक्स स्क्वायर भी है, फिर एक्स भी है, और फिर कांस्टेंट भी है, तो वो एक्स तो नहीं चाहिए ना अपने को। तो अभी अपने को कुछ करना पड़ेगा कि एक्स नहीं रहे वहां पर, राइट। सो व्हाट शुड आई डू? तो वो एक अलग मेथड है जो हम लोग अभी लर्न करेंगे कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। उसको हम लोग एज अ टाइप पढ़ने वाले हैं, एंड वी विल कॉल दैट टाइप एज वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप, राइट, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, राइट। जस्ट अ मिनट, हाँ बच्चों। Okay. So, what I was explaining you till this question 9th, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है वो, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ही कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। 9 तक ये था, अभी 10th ऑनवर्ड जो है वो थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसको एज अ टाइप हम लोग स्टडी करेंगे। यू कैन राइट दैट एज, यू नो, हैंग हो रहा है, जस्ट अ मिनट। इंटीग्रल ऑफ द टाइप Okay, so this is the separate type of questions we are making them. 1 upon ax square plus bx plus c, or it can be 1 upon root ax square plus bx plus c. Follow the steps, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। I'll take the example of the first one without root वाला, ठीक है, and then वैसा ही रूट वाला भी हो जाएगा।
Okay, so it's 1 upon quadratic and 1 upon root quadratic. Let me take one problem which is 1 upon quadratic. मुझे लैपटॉप को ज्यादा ही प्रॉब्लम दे रहा है. Okay, hello students. So I was explaining you about this 1 upon quadratic type. So let us consider a question, in general question, which looks like this. So how to solve this type of problem? Step number 1, you will have to make coefficient of x as 1. That is same. Okay, make coefficient of x as 1. So what will you do for that? What will you do for that? You will have to take x common, a common from x square, right? So let us take a common. So if I take a common from here, I will be left with x square. I think it's not working out here. Okay, students, sorry. I think there's some problem with my laptop. Let us continue. Let's see. Hope वापस disturb नहीं करना चाहिए. So what I did is first step, take coefficient of x square common. तो a था, a common लिया. बाकी लोग में a नहीं है तो divide कर दिया. ठीक है? Is the first step is clear to everybody? First step. Okay. After that, what you will do is you will find half into coefficient of x and square it. So here half into
What is coefficient of x? B by A. Again, it is happening the same here. मैं कीबोर्ड ही निकाल दिया, चलो जाने दो. हाफ इंटू coefficient of x is b by a, so b by a the whole square, so it is going to be b square upon 4a square, correct. अभी ये जो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर आएगा, उसको आप क्या करोगे, ये जो क्वाड्रेटिक है उसमें x स्क्वायर और x है और कांस्टेंट है, तो x स्क्वायर x के साथ इसको ऐड करोगे और जो कांस्टेंट है उसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे. So it will be 1 by a integration of 1 upon x square plus b by ax plus b square by 4a square plus c by a minus b square by 4a square. dx. Are you all understanding this? ये स्टेप समझ में आया बच्चों आपको? अभी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीखा था, उसमें हम सबको मालूम है कि ऐड करने पर दिस बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर. सो सी हियर व्हाट आई विल गेट, तो फर्स्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ एक्स, लास्ट टर्म इज स्क्वायर ऑफ b by 2a, मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज नथिंग बट x plus b by 2a the whole square. ठीक है, इसको आप अगर ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका एक्सपांशन यही होने वाला है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, और यहां पर क्या है सेकेंड टर्म, आप सेकेंड टर्म देखोगे तो इट इज ऑल कांस्टेंट ना बच्चों, कैन यू सी दैट. अभी कोई भी नंबर आने दो कांस्टेंट में, उसको तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं ना. यस, उसमें रूट लगा दिया तो वो कोई भी कांस्टेंट आने दो, उसको मैं रूट ऑफ कांस्टेंट का स्क्वायर लिख सकता हूं. सो डोंट यू थिंक दिस फॉर्मूला, दिस क्वेश्चन गेट्स कन्वर्टेड इनटू 1 upon x square plus a square. If x is replaced by linear equation, it is okay, no problem. So same thing will happen in root also. बस रूट में क्या होगा, a कॉमन लिया तो वो रूट a हो जाएगा, दैट्स ऑल. बाकी तो वही रहने वाला है, अंदर रूट वाला फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, तो चलो एक हाथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा. सो लेट अस सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 10 नाउ. I is equal to integration of 1 upon x square plus 8x plus 12. Now you can see here that in this question the coefficient of x square is already 1, so I don't have to take anything common, right? First step जो हम लोग normally करते थे, तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली किस स्टेप पे आएंगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x. So half into coefficient of x the whole square, that is half, coefficient of x is 8 the whole square, 2 4s are, so this is 4 ka square. Okay, either you can just keep 4 ka square or you can write 16 also, no problem. Now if I substitute them back, not substitute them, adding and subtracting, so it will be x square plus 8x, उसमें 16 ऐड किया एंड 12 में 16 सब्ट्रैक्ट किया. अब ये क्या हो जाएगा,
तो अभी जो पहला टर्म है वो x, बीच का टर्म प्लस और लास्ट टर्म 4 का स्क्वायर है, तो आप चेक कर लो, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। 12 minus 16 is minus 4 dx. Now in the next step 4 can be written as 2 का square, so this becomes x plus 4 the whole square minus 2 the whole square. So don't you think, students, that it looks like 1 upon x square minus a square? उसका फॉर्मूला क्या है? 1 upon 2 into a is 2 log of mod of x minus a, तो x plus 4x है minus a upon x plus a plus c. यहाँ पर कोई भी हमको वो टेंशन नहीं है x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसका कोएफिशिएंट 1 बना के रखा है। सो आपका फाइनल आंसर होगा 1/4 log of mod of x minus 2 upon x plus 6 plus c. सबको समझ में आया बच्चों? हाँ, सॉरी, नॉट -2, इट्स +2. Just follow these steps. Understood, everybody? Okay. Let us do one more problem. 11th one. I is equal to integration of 1 upon 1 plus x minus x square. Okay. Now here also it looks like a quadratic, but it's not properly arranged. x square minus में है and all. तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक माइनस कॉमन, तो वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, एंड +1 -1 हो जाएगा. करेक्ट? Now, definitely minus taking common will be an ideal way to solve this. But students, अगर माइनस कॉमन लिया तो बाहर -1 होएगा, 1 upon -1. ठीक है? बट आप सोचो, अगर ये रूट के अंदर होता क्वेश्चन, रूट के अंदर होता क्वेश्चन, then can we take minus common? No, because root of negative number is not defined, it's not a real number, isn't it? So फिर क्यों हम माइनस कॉमन करने का हैबिट डालें? हम ऐसा समझते हैं कि माइनस कॉमन नहीं करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो फॉलो माय स्टेप. आई थिंक आई हैव गिवन यू एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई नॉट टू टेक माइनस साइन. कभी कभी गलती से यहाँ तो मैं माइनस कॉमन लेके कर लूंगा, बट आप रूट में भी फिर माइनस कॉमन लेके कर लोगे तो उधर गड़बड़ हो जाएगा. इसके लिए हम हैबिट डालते स्टार्ट में कि हम माइनस कॉमन नहीं लेना. तो फिर क्या करना है? कोई टेंशन नहीं, अभी पहले देखने का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो है ना, भले -1 चलेगा. ओके है, तो फिर डायरेक्टली हाफ इंटू कोएफिशिएंट करो, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर. सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1, सो इट इज 1/2 का होल स्क्वायर, सो इट इज 1/4. प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या किया था बच्चों, हमने एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर और एक्स के टर्म के साथ 16 ऐड किया था और कांस्टेंट के साथ सबट्रैक्ट किया था. तो हम ऐसा रूल याद रखेंगे, अगर जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा तो हम उसके साथ ऐड करेंगे और कांस्टेंट के साथ सबट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा तो उसके साथ हम कांस्टेंट सबट्रैक्ट करेंगे और
जो जो ये जो आया नंबर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और कांस्टेंट के साथ ऐड करेंगे। समझ रहे हो क्या आप लोग? क्यों करेंगे वो अब आपको अभी समझेगा। टू डू फ्यू एडजस्टमेंट्स, सी हियर। तो मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पर, अब जो मेरा कांस्टेंट नंबर 1 है उसके साथ मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। देखो 1/4 कर दिया, ठीक है। और इन दोनों के साथ मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो थोड़ा मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ। बीच में प्लस लिखा, लाइक पहले मैं -x² लिखता हूँ, फिर मैं x लिखता हूँ, और फिर मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करो मतलब -1/4। सी एनीवेज प्लस माइनस करना है, आप किसके साथ प्लस कर रहे हो किसके साथ माइनस, दैट इज इमटेरियल। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये वाला लॉजिक याद रखना है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अब मैं माइनस कॉमन लूंगा ओनली विद दिस ब्रैकेट। आई एम नॉट टेकिंग माइनस आउटसाइड द एंटायर एक्सप्रेशन, राइट? So the first term will remain as it is. 4 ones are 4 plus 1, 5/4. I took minus common. So I will be left with x² minus x plus 1/4. ठीक है? And now I can say that this is whole square of something. किसका whole square है वो? तो वो whole square है x minus 1/2 का। ये 4 स्टेप समझो बच्चों। जिसको नहीं समझा प्लीज आस्क मी। कैसे किया हम लोगों ने? देखो अगर मैंने यहाँ पर +1/4 किया रहता तो प्रॉब्लम क्या होता, इधर -1/4 आता, फिर ये थोड़ी ना x -1/2 का होल स्क्वायर होता। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a² माइनस 2ab प्लस b² आता है। जस्ट गो थ्रू दीज स्टेप्स। समझ में आया नहीं आया बताओ मुझे। yes, okay, now it looks like a formula. It looks like a formula. Which formula? अच्छा ये a को अभी करना है, एडजस्टमेंट बाकी है। तो ये हो जाएगा 1/√5/4 का स्क्वायर तो 2 होता है। सो √5/2 का स्क्वायर माइनस x minus 1/2 का स्क्वायर। सो दिस इज a² minus x²। तो आंसर है 1/2a, 2 into a is √5/2 अपॉन फॉर्मूला log of mod of a plus x, तो √5/2 plus x minus 1/2 and then √5/2 minus x minus 1/2। ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे हम थोड़ा सा। सो हियर यू कैन सी 2 कैंसिल। तो इधर तो अपने पास 1/√5 बचा, and here I will get as log of, I can take LCM ना, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो √5 plus 2x minus 1/2 and √5 minus 2x and this is +1 क्योंकि -x and प्लस हो जाएगा /2, तो /2 कैंसिल। √5 - 1 कांस्टेंट है, उसको साथ में रख सकते हो या तो ऐसा भी छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो योर आंसर इज 1/√5 log of mod of √5 minus 1 plus 2x and √5 plus 1 minus 2x plus c। अब अगर किसी ने इस क्वेश्चन में वो कॉमन लेके सॉल्व करने का सोचता तो उसका भी आंसर यही आता, बस उसमें क्या होता, बाहर माइनस होता और ये वाला एंगल नीचे और ये ऊपर होता। तो देखो ना, माइनस अगर अंदर जाएगा तो वापस ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो वो हमको करना ही है, तो उस बारे में सोचना नहीं अपने को, माइनस कॉमन लेने का मेथड, ठीक है। सो आई होप सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया कैसा हम लोग ने सॉल्व किया। तो अभी एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
You all have to think and do this problem, 12th one. I'm giving you 5 minutes to solve this problem. 1 upon 4x square minus 20x plus 17. Start doing it. So complete all question number 1 like this, which you have done. It was very easy problem. You have to just take 4 common, then half into coefficient करके solve करना है. ठीक है? तो बाकी के जो questions है, question number 1 में वो solve करना है. That's all for today. Thank you very much.